کہتے ہیں آج ہم ریجن کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، خاص کر بھارت کی جانب سے جو جارحیت ہو رہی ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی، انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی، اور کافی پاکستانیوں کو جو بے گناہ شہری ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے انڈیا کی جارحیت کی وجہ سے۔ وہاں سے جو ان پرووکڈ فائرنگ کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً، اور پچھلے کچھ دنوں میں تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا، اور ہمارے ہائی کمشنر نیو دہلی میں عبد الباسط صاحب نے اس کو پروٹیسٹ بھی کیا۔ یہاں پہ فارن منسٹری میں ان کے جو ڈپٹی ہائی کمشنر ان کو 2 مرتبہ مدعو کیا گیا ہے۔ بٹ دا کویسچن از کہ جب مودی آئے تھے ایز اے پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر ہمارے گئے، انہوں نے ایک گڈ جیسچر دیا، پاکستان وانٹڈ ٹو ہیو اے کارڈیل ریلیشن ود دیم، اور ہمارے جو مسائل ہیں خاص کر جو کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، لیکن انڈیا کوئی دکھائی نہیں دیتا سیریس اس حوالے سے۔ سیکرٹری خارجہ کی جو مذاکرات تھے ان کو کینسل کر دیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہے ہیں، بلوچستان میں ان کے فٹ پرنٹس ہیں، فاٹا کے اندر ان کے فٹ پرنٹس ہیں، باقی علاقوں میں افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ سو یہ انڈیا کیوں نہیں چاہتا کہ ایک امن ہو ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور فوکس جو ہے وہ یعنی ان معاملات پہ کرنے کے بجائے اکانومی، سوشل سیکٹر، ہیومن ڈیولپمنٹ، ان چیزوں کے اوپر فوکس ہو۔ لیکن وہ جو سارک کا ایک پلیٹ فارم تھا اس کو بھی انڈیا نے کبھی بھی ابھرنے نہیں دیا کہ وہ ایک فعال اور پروڈکٹیو کام کر سکے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ مطلب ایڈوائزر جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے آن فارن افیئر، ستاج عزیز صاحب جو سلامتی کے مشیر بھی ہیں، وہ جا رہے ہیں انڈیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلنا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ ایک آئس میلٹنگ ہو سکتی ہے، پروڈکٹیو ڈسکشن انڈینز کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بیکاز انڈینز آر ناٹ سیریس۔ وہ سیریس نہیں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو بہتر کیا جائے، بلکہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملات کو خراب رکھا جائے، شاید اس میں ان کا کوئی فائدہ۔ اور خاص کر سی پی ای سی کے موقع کے اوپر جب پاک چائنا اکنامک کوریڈور سائن ہوا، ڈکلیئر ہوا، تو باقاعدہ طور پہ چائنا جا کر انڈین پرائم منسٹر نے پروٹیسٹ کیا، ریٹن پروٹیسٹ انہوں نے کیا۔ ان کی فارن منسٹر جو ہیں سشما صاحبہ، انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا کہ جی یس وی آر ناٹ ان فیور آف دس۔ یہ سارے معاملات ہیں، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں، پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی جو سوورنٹی ہے، اس کو انٹیکٹ یقینی طور پہ ہر سطح کے اوپر رکھا جائے گا اور رکھا جانا چاہیے بھی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد خان صاحب، آپ آئی آر ڈپارٹمنٹ این ڈی یو کے چیئرمین ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ناظرین ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ۔ بہت بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ وحید صاحب۔ وعلیکم السلام، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیزائنز کیا ہیں مودیزم کا، جو ایک ہم اگر اس کو ایک فلسفی کہیں، فلسفہ کہیں، جو بھی اس کا ایک مطلب پوائنٹ آف ویو ہے۔ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں بدقسمتی سے وہ کبھی بھی کارڈیل نہیں رہے، ہمیشہ اس میں اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ ایک دوستی اور ایک نیبرہڈ کی جو فضا ہے وہ میرا خیال ہماری تاریخ میں کبھی رہی نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں یا یہ کہہ سکیں کہ ہندوستان اور پاکستان آنے والے وقت میں یعنی پریڈکٹ کر سکیں کہ شاید کوئی بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہندوستان پہ زیادہ عرصہ جو حکومت رہی ہے وہ کانگریس کی رہی ہے، اور کانگریس ہندوستان میں ایک ایسا فیس ہے دنیا کے سامنے جو سیکولرزم لے کے آگے چلتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ مودیزم کے دور میں یا مودی کے دور میں جو چیزیں بگڑی ہیں، یہ جو پرابلمز آئے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کانگریس کے دور میں یہ پرابلم رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہندوستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ایک جس میں کہیں بیوروکریسی کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور یعنی کوئی بھی جماعت حکومت میں ہو، سرکار میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ when it comes to پاکستان۔ وہ دونوں کا میں آپ کو کہوں کہ ایک ہی طرح ہندوستان کی approach جو ہے۔ الیکشن کی تحریک بھی چلتی ہے اس میں بھی ہمیشہ پاکستان ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ جماعت آگے نکلتی ہے، وہ جیتی ہے جو پاکستان دشمنی میں سر فہرست ہوتی ہے۔ اب جب ایک کانگریس جیسی جماعت بھی یہی کام کرتی ہے، صرف وہ سامنے جو رکھتے ہیں اپنا سافٹ امیج رکھتے ہیں، سیکولرزم رکھتے ہیں،
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का वैसे ताल्लुक है, सॉफ्ट भी इमेज, क्या सॉफ्ट इमेज है, यानी क्रिश्चियंस को वो मार रहे हैं वहाँ पे, चर्चेस को वो जला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, मसाजिद को गिरा रहे लेकिन फिर हैं, भी वो शहीद कर रहे सेकुलरिज्म की हैं। आड़ में रहते हैं। जी हाँ, लेकिन जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है ना, उनका तो देखें बेसिक आइडियोलॉजी ही हिंदुत्वता है। आरएसएस के वो लोग ये पॉलिटिकल विंग है और वो मिलिटेंट विंग है, मिलिट्री विंग है उनका। तो आप इनसे तो कभी तवक्को ही ना करें, क्योंकि आरएसएस का नारा जो है, जो नारा है उनका स्लोगन ही यही है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, मुसलमानों के साथ दुश्मनी, और जो अकलीतें जितनी हैं या तो वो दोबारा हिंदू बन जाए या फिर हिंदुस्तान छोड़ दें। तो इस माहौल में आप क्या तवक्को करेंगे कि मोदी साहब जो कि खुद आरएसएस के बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं, तो वो कोई पाकिस्तान के साथ बेहतरी करेंगे? फिर दूसरी चीज़ जो मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जब उनकी अल्फ़ वफादारी होती है तकरीब, तो इस खैर सगाली के जज्बे के तहत वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं कि शायद हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कोई पॉजिटिव किरदार अदा करे और पाकिस्तान दुश्मनी में कमी करके एक साजगार माहौल बने ताकि दोनों मुल्क तरक्की करें। सही बात। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि उन प्रॉमिसेस के बावजूद कोई ऐसी फ़ज़ा डेवलप नहीं हो सकी जिससे हम कह सकें कि मोदीज़म शायद कल कुछ बेहतरी की तरफ आ जाए। फिर देखें, बातचीत के लिए माहौल बनाना पड़ता है। पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की कि नेगोशिएशन की टेबल पे जाया जाए, बातचीत की जाए और मसाइल हल किए जाएं, लेकिन बार बार वादों के बावजूद, अभी जैसे उफा में जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे भी मीटिंग तो हुई, दोबारा मीटिंग तो हुई और रीइटरेट किया गया कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन चंद ही दिनों बाद आपने देखा कि वो जो एलिगेशंस थी एक दूसरे पे, खास करके हिंदुस्तान की तरफ से, वो चल पड़ी। फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ जो फायरिंग का सिलसिला है वो इतना एक्सटेंसिव हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ आपने फिर वो एक लड़का जो पकड़ा गया जी, वो ये कहते रहे जी कि ये तो वहाँ का है, पाकिस्तान का है, और फिर वो अल्टीमेटली पता चला सिटी का नाम भी ले लिया और पता ये चला जी कि वो खुदा कश्मीर का है। वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं ना, वहाँ एक माइंड सेट है और अपने मीडिया ने फिर उनके डिस्क्लोज किया इसको। मैं कहता हूँ उनका मीडिया, उनकी राह, उनके अवाम और बदकिस्मती से उनकी हुकूमत की, चूंकि ये सारी वो चीज़ें हैं बदकिस्मती से जो हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल स्टांस होता है, अब वो चीज़ देखते नहीं, उसकी तहकीक नहीं करते, सबसे पहले पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि वो अवाम को एकदम अपने साथ ही मीडिया को मिला लेते हैं, लेकिन बाद में नुकसान ये होता है कि जब प्रूव होता है कि ये चीज़ें तो बड़ी मुख्तलिफ थी, तो उसके बाद शायद लेकिन वो फिर उनको शर्म नहीं आती ना उसका। तो बदकिस्मती ये है कि अभी ये तो देखिए रियलाइज करने की बात है। उसकी वजह ये है कि डिसेंसी जो है बड़ी जरूरी चीज होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन वो डिसेंसी वाला एलिमेंट नहीं है। वैसे डिसेंट लोगों के साथ की जा सकती है। आई डोंट नो कि आप किस राय में मतलब उनको कह रहे हैं, मतलब वो कोई डिसेंट लैंग्वेज हमारे हक में नहीं इस्तेमाल करते। हक में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको कहूँ 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब दुबई में थे, यूएई में उन्होंने जो बातचीत की है, अब उनके लफ्ज़ सुन लीजिएगा, वो जो स्टेटमेंट कोटेड में कहता हूँ, उन्होंने कहा अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक तमाम ममालिक जो हैं साउथ एशिया के, वो हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान की जो तरक्की है उसमें वो हिस्सादार बनने चाहते हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो जो सुनने वाले हैं वो क्या गूंगे बहरे अंधे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, या यूएई के हमारे जो ब्रदर मुल्क है उनका भी थोड़ा बता रहा हूँ। अब ये कहा कि वो तो सारे हिंदुस्तान के साथ हैं, अब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके एक ही मुल्क ऐसा है जो कि हमारी तरक्की से हमारे साथ नहीं मिला हुआ है, लिहाजा वो अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने एक पूरा बाकियों को तो अंडर कमांड कर लिया। पाकिस्तान अंडर कमांड होता नहीं है, पाकिस्तान उनसे क्यों अंडर कमांड हो? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, एक सॉवरन मुल्क है और पाकिस्तानी समझते हैं कि हमने हिंदुस्तान से आज़ादी, हमने अलहदगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे ही नहीं आज़ादी ली थी, ज़ाहिर उनको पता था कि यहाँ पे मुसलमानों के जो हकूक थे वो कैसे सल्ब किए जा रहे थे, कैसे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। मैं फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगा कि ये जो एलओसी को गर्म किया हुआ है इंडिया ने, एक तरफ वो कहते हैं जी हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे सताज जी साहब भी जाएंगे, उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या मकासद हासिल करना चाहता है इंडिया एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर को के ऊपर खिलाफ वर्जियां करके, क्या हासिल करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वही साहब। देखिए ये तो बात, पहले तो मैं ये कह दूं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से इंडिया में वो मैं इसको कहता हूँ ना 3M, ये MMM नेक्सस, मोदी, मीडिया और उनका मिलिट्री, और जाहिर बात है सपोर्टेड बाय रॉ, ये नेक्सस है जो इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर भी गैर मुस्तहकम करने की भरपूर उनकी कोशिश है, और साथ साथ वो उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जो इंडियन आर्मी का जो एक्शन है। मेरा ख्याल है बात तो बड़ी क्लियर है, वो इस वक्त आपको लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री को इसलिए हॉट रखना चाहते हैं,
वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को एंगेज किया जाए, पाकिस्तान आर्मी को प्रोवोक किया जाए, ताकि पाकिस्तान आर्मी जरा अगर डिफेंसिव अपना पोजीशन से हटकर जरा अग्रेसिव हो तो हालात जो है फिर जाहिर बात है कशीदा होंगे, एस्केलेशन लिमिटेड हो सकती है। और ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान आर्मी और ISI और हमारे बाकी एजेंसी वो पूरे कमिटेड हैं इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में, कराची, बलूचिस्तान और फाटा, जहाँ पे भी इंडियन प्रॉक्सी भी हैं जिनके खिलाफ ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है, तो उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान आर्मी को लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे पिन डाउन किए, एंगेज करके इनको एट्रिशन कॉज की जाए और इनको वहाँ पे अपना एक किस्म का एक एंगेजमेंट इनको इनके साथ की जाए प्रोसेस, ताकि इनके जो बाकी एरियाज में जो है वहाँ से मामला जो है इनके वो अपना डिस्ट्रैक्शन हो। तो एक तो ये बात है। दूसरा जारी बात है, अगर हम ज्यादा ग्लोबल अपना लार्जर पिक्चर देखें तो जो इंडिया के ग्लोबल अज़ाइम हैं to become a global power, to become a regional power, और खासकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद ये बात ज्यादा वाज़ेह हो गई है, तो पाकिस्तान उसमें एक रुकावट है। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल हिंदुस्तान की जो भारत की बालादस्ती है वो इस खत्ते में कबूल करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान क्योंकि चाहता है कि बराबरी की बुनियाद पे बातचीत हो और डायलॉग प्रोसेस आगे बढ़े, आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। और तीसरी चीज ये है कि कश्मीर जो है इस वक्त वो उनके लिए बड़ी बहुत सख्त प्रॉब्लम बन चुका है, और ये खासकर एक बड़ी इंसल्ट है जो मोदी साहब महसूस कर रहे हैं कि उनके आने के बाद बजाय ये कि कश्मीर ज्यादा उनके कंट्रोल में आए, हालात काबू में आए, वो हालात वहां से काबू से बाहर होते जा रहे हैं। तो लिहाजा वो पाकिस्तान को जाहिर बात है ब्लेम कर रहे हैं कि जी कश्मीर में जो फ्रीडम मूवमेंट में तेजी आई है, जो रोज पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है और जो वहां पे प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट इतना अरूज पे है, तो यकीनन उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत एम्बेरसमेंट है। तो लिहाजा वो मैं तो ये कहूँगा इन अ वे ये भी एक फैक्टर है कि वो कश्मीर का जो गुस्सा है, कश्मीर में जो अपनी नाकामी है वो ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो जाहिर बात है फिर वो नजर आती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री में। दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि देखें ये बहुत स्मार्ट मूव्स हो रही है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। एक तरफ वो UAE जा रहे हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है उनका ये भी हमें खबर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स का एक पूरा कंटिंजेंट है जो वापस आते हुए सऊदी अरेबिया में उन्होंने लैंड किया, ताइफ में, वहाँ पे एक्सरसाइजेज भी हुई वगैरह ये वो। तो आजकल सऊदी अरेबिया के साथ भी वो वार्म अप करने की अपना वो उनकी एक्सरसाइज चल रही है। तो एक किस्म का मैं ये समझूंगा कि एक कोशिश है कि इंसर्टलमेंट किस्म की जाए, पाकिस्तान को पॉलिटिकली और आइसोलेट किया जाए। अफगानिस्तान में आप देखें, मैं हैरान हूँ कि चंद हफ्ते पहले हम बहुत पॉजिटिव हालात देख रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान, और इतने अच्छे जस्टिस आ रहे थे, दोनों तरफ से मामला अच्छी तरफ बढ़ रहे थे। अफगान पीस प्रोसेस को इन्होंने, अफगान इंटेलिजेंस और रॉ का नेक्सस, ये एक और नेक्सस है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है तो रीजनल लेवल, वो ये कामयाब हो गए पीस प्रोसेस को डिरेल करने में। और अब आप देखें कि आज ये सूरत हाल है कि अफगान के जो एम्बेसडर है उनको बुलाया जा रहा है, उनके साथ प्रोटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं। इंडियन हाई कमिश्नर को कितनी मरतबा आप तुम भूल ही गए हैं, आदी हो गए पाकिस्तानी कि उनको फॉरेन ऑफिस बुलाता है। मैं दरअसल वही साहब ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान समहाउ द अदर डिप्लोमेटिकली जो उनके एफर्ट्स थे कि वो उस तरह वो नाकाम हो गए हैं कि ये वायलेशंस को रोका जाए। हालात तो ये हो गए कि अब 2 हेलीकॉप्टर भी आज एयर स्पेस के इंडियन ने वायलेट किए हैं। और दूसरा पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम अपना मैसेज जो है वो सफारतकारी के जरिए वो कन्वे करने में उसमें भी हम नाकाम हो गए। मुझे समझ नहीं आती, इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तानी बड़े इस वक्त परेशान है, गुस्से में है कि ये क्या वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती हालात को। हर रोज ये जो मामूल बन गया है बॉर्डर वायलेशन का, हर रोज पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो रहे लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे। भाई हमें कौन रोकता है? हमारी सोवरेनिटी किधर गई? हमारा वो एक एज ए न्यूक्लियर पावर हमारा वो वकार और नेशनल प्राइड किधर गया? आप जाएं, कौन रोकता है आपको? सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, वहां पे रेजोल्यूशन लेके आए, प्रोटेस्ट लॉन्च करें, सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट कराएं। बेशक हमारी रेजोल्यूशन जो है वीटो हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अभी तो लग रहा है कि हम जिसमें बिल्कुल बैकफुट पे है। अफगानिस्तान वाले जो है वो भी हम पे पंचेस मार रहे हैं, यहाँ से भी रोज जारियत हो रही है। तो मुझे नजर आ रहा है कि एट दी पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल एक बड़ी नाकामी सामने आ रही है। पाकिस्तान के अवाम पूछ रहे हैं कि भाई ये इतना ऐसी क्या बात है कि हमारी लीडरशिप
جو ہے وہ ان حالات کو کنٹرول کرنے میں مطلب کیوں ناکام ہے؟ اب دیکھیں نا 2 دن کے بعد جو سرتاج عزیز صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، یقیناً اصولت تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے جانے سے پہلے یہ اوفا کی اپنا فالو اپ میٹنگ ہے جو سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ہے دونوں ممالک کی، تو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہونا چاہیے تھا امن کا، لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ انڈیا کی نہیں، لیکن موجودہ جو صورتحال ہے ایٹماسفیئر کو، لیکن آپ دیکھیں وہ تو اس میں زیادہ شدت آ رہی ہے. تو مجھے تو معلوم نہیں ہو رہا کہ 48 گھنٹے کے بعد جب وہ ملیں گے نیو دہلی میں تو وہ کیسے وہ کیا سٹیپ لیے جائیں گے، وہ کیا کانفیڈنس چلیں فاروق صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. کس فریم آف مائنڈ سے سرتاج عزیز صاحب ان سے بات کریں گے؟ مطلب ایک طرف وہ ہمارے عام لوگوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، بات بھی نہیں سن رہے، اور بالکل بڑا مطلب اچھے طریقے سے انہوں نے کہا کہ افغانستان کی بارڈر کو بھی گرم کر لیا. ان کی جو ایک کانسپریسی تھی ٹاکس کے دوران، یہ جو خبریں آئیں ملا عمر کی کہ جی وہ 2 سال پہلے ہی ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا، پھر وہ پروسیس رک گیا. سو مطلب کس فریم آف مائنڈ سے ہمارے جو ایڈوائزر ہیں he'll be able to talk to them؟ بھائی صاحب یہاں دیکھیں ایک بڑی امپارٹنٹ سچویشن ہے. سچویشن یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف وہ ایران ہے، افغانستان ہے، ابھی UAE تک چلا گیا ہے، اور اپنے ساتھ جو بھارت کی اور پاکستانی مشرقی سرحد ہیں وہ تو پہلے سے ہی گرم ہے. ایسے انوائرمنٹ بھارت نے کریٹ کر دیے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی پوری کاوش ہے. اب دیکھیں یہ ہماری ہم کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر میں سکتے بتا رہا ہیں؟ ہوں وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو کرے گا یعنی ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر پینیٹریٹ کیا ہوا ہے. ایران از اے مسلم کنٹری، افغانستان از اے مسلم کنٹری، سعودی عربیہ، UAE. So they are penetrating everywhere and we can't do that. میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنا مڈل ایسٹ کے علاقے ہیں اور ایران، اس میں بھارت نے اپنی بڑی اچھی جگہ بنا لی ہے. بھارت کے جو لوگ ہیں بڑی تعداد میں وہاں جاب کرتے ہیں اور امپارٹنٹ کی پوزیشنز پہ ہیں. بھارت کے لیے بھارت ان ممالک کے لیے مختلف اسٹڈیز تیار کرتا ہے، مختلف جس کو کہیں کہ وہ پروجیکٹس بناتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسٹینسولی ان چیزوں میں انوالو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرتاج عزیز صاحب جب جائیں گے تو کیا بات چیت ہوگی، کیا ماحول ہے. ماحول تو سازگار نہیں ہے. اب ماحول کیا ہے؟ ماحول ایک پریشر والا ماحول ہے. پاکستان کا جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جب ہندوستان جا رہا ہے، نئی دہلی جا رہا ہے، تو جو ماحول ہے وہ کافی ٹینس ہے، پاکستان کے لیے ٹینس ہے. انہوں نے جان بوجھ کے اس کو بنایا گیا ہے کہ جو مین ایشو ہے، جو یعنی کشمیر کا ایشو ہے، جو پانی کا ایشو ہے، اس کی طرف یہ آئے ہی نہ پاکستان، اس کی طرف آئے نہ صرف اور صرف بات چیت ہو، اسکرمشز کے اوپر ہو. اسکرمشز میں بھی ہے، لیکن اس سے بھی امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دبئی کی آپ کو دوبارہ بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ بھی دی ہے جس میں دبئی کے جو ان کے ڈپٹی فارن منسٹر بھی تھے اور ان کے سامنے یہ بات چیت ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کون ہیں، ہمیں جس چیز سے غرض ہے کہ اس ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کیا جائے. اور پاکستان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ گڈ اور بیڈ طالبان، چونکہ شاید کسی دور میں ہمارے ہاں بات چیت ہوتی تھی، لیکن اب تو خیر وہ کوئی تفریق ایسی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو بڑا واضح ہو کے کہا، انہوں نے کہا جی ٹیررزم کو روٹ آؤٹ کرے. اب اگر اوفا کی طرف آپ جاتے ہیں، جس کی روشنی میں ہمارے جو ایڈوائزر صاحب ہیں سرتاج عزیز صاحب ہندوستان جا رہے ہیں، تو اس میں بھی کشمیر کو نہیں لائم لائٹ پہ نہیں لایا گیا، لیکن ٹیررزم کو لائم لائٹ پہ لایا گیا. اب پاکستان بیسیکلی تو ان کی سر یہ کوشش ہے نا کہ کشمیر کے اندر جو بات ابھی فاروق حمید صاحب بھی کر رہے تھے کہ پاکستانی جھنڈے وہاں پہ لہرائے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 15 اگست والے دن پورا بند ہوتا ہے، اس 14 اگست والے دن وہ خود کرفیو لگاتے ہیں. 14 اگست تو پاکستان کا یوم آزادی ہے، اور وہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ پھر جھنڈے نکلیں گے، پاکستان کے حق میں نعرے ہوں گے، عوام نکلے گی، بالکل نکلے ہیں. تو اب اس کو دبانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے، ٹیررزم، اور خود سب سے بڑے جو ہیں دہشت گرد ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب سرتاج عزیز صاحب کی جو متانت ہے، جس کو ویژن یا فورسائٹ کہتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کرے گی کہ وہ ان ساری چیزوں کو پریمپٹ کیسے کرتے ہیں. اگر دیکھیں ٹیررزم از این ایشو، یہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ٹیررزم ہندوستان پاکستان میں کر رہا ہے. ہندوستان پورے بلوچستان میں ٹیررزم کر رہا ہے، کشمیر میں کر رہا ہے، ہندوستان فاٹا میں کر رہا ہے، ہندوستان پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہندوستان سے تو لنکڈ ہے ساری چیزیں. یہ جو TTP والے لوگ ہیں، کہاں سے فنڈنگ ملتی ہے، ان کو ویپن کہاں سے ملتے ہیں. اب اگر تو وہ پریمپٹیو طریقے سے جاتے ہیں، وہ ان کو ثبوت دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے ٹیررزم کے ثبوت ہیں،
अगर उनको डिफेंसिव पे रखते हैं और उनके मुल्क में जाकर डिफेंसिव पे रखते हैं फिर तो बात बनेगी। लेकिन हमारी पॉलिसी तो वही अपीसमेंट वाली पॉलिसी रही है। पीपल्स पार्टी के 5 सालों के दौर में भी आप देख लें, और ये जो अभी 2 साल हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने एक हद तक तो कोशिश की है, बट आई थिंक इंडियंस रिमेन सक्सेसफुल। देखिए सक्सेसफुल इसलिए उनकी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग है और ये हमें मानना पड़ेगा। अब उसके लिए डिप्लोमेसी का जवाब जो है डिप्लोमेसी से दिया जा सकता है, डिप्लोमेसी का जवाब गन से नहीं दिया जा सकता। वो तो गने हमारे ऊपर खोली हुई हैं। गने जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, गनों की तो आपने भी बात की, बिगड़ी साहब ने भी बात की। गनों का जहाँ तक ताल्लुक है, गन्ने उन्होंने इसलिए की हुई है कि कश्मीर में आपने जैसे पहले फरमाया कि कश्मीरी एक इस वक्त आर्टिकल 370 को वो अंडू करने चाहते थे, वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको रिक्विजिट वो जो असेंबली में स्ट्रेंथ नहीं मिली। आर्टिकल 370 अदरवाइज कश्मीरियों के लिए गुलामी की अलामत है, लेकिन इस टाइम में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग उसको इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि ये वो वाहिद आर्टिकल है जिससे कश्मीरियों की अपनी अलहदगी यानी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। वो चाहते हैं कि ये आइडेंटिटी तो कम से कम मौजूद रहे, अदरवाइज जो उनका प्लान है वो इसको मर्ज करने का है, और वो ये है कि इंडियन यूनियन में ये स्टेट भी मर्ज हो जाए। अब कश्मीरियों ने जो रिवोल्ट किया दोबारा, जिसको कहते हैं पीसफुल रिवोल्ट, इस वक्त कश्मीरी वेपन नहीं उठाए हुए, पॉलिटिकल तरीके से पाकिस्तान के फ्लैग दिखाते हैं, पॉलिटिकल तरीके से पाकिस्तान के साथ जिगानगत करते हैं, और ये बड़ी चीज़ है जो मोदी साहब हजम नहीं कर पा रहे हैं, मोदी साहब भी और उनकी बीजेपी भी। दूसरा ये भी है कि उनकी अपना जो एक पॉलिटिकल एजेंड वो जो था, मैं फारूक साहब से फिर आपकी तरफ। फारूक साहब आप सुन रहे हैं जी? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल। जब मोदी साहब आए थे पावर में तो उनका पूरी कैंपेन जो थी वो ये था कि हम इंडिया के अंदर मईशत को तब्दील करेंगे, सोशल सेक्टर सारे का सारा तब्दील हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और वहाँ के जो मसाइल है वो हल होंगे, लेकिन वो तो वो कर नहीं पाए, और उन्होंने अपना फोकस जो है वो यानी पूरे रीजन के ऊपर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि उनके लोग भी जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से जब बात करते होंगे तो उनके अपने जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो सब्सिडाइज करके इस इशू को सबसे ऊपर, टेररिज्म और इन चीज़ों को ले आते हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है कश्मीर के अलावा भी कि वो खुद अंदर नाकाम हो गए हैं और वो पाकिस्तान को फोकस करके अपनी नाकामी, अपनी हुकूमत की नाकामी को छुपाना चाहते हैं? देखिए वही साहब, ये बात तो सही है क्योंकि वो तो आए थे बड़ा एक सुपर शाइनिंग इंडिया का और एक वो ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का ख्वाब लेके, ड्रीम लेके आए थे, और जारी बात है को पूरी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड थी, अपना बिजनेस वर्ल्ड, वो कम्युनिटी वो पूरी उनके साथ थी, वो उनको लेके आए थे कि ये इकोनॉमिक वंडर्स होंगे। लेकिन उस तरह आप देखें ना, दूसरा साल मोदी साहब को शुरू हो गया है, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी अगर कभी आप उनके कभी हम चैनल में जब देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो वो इस बात का इजहार करना शुरू कर दिया है कि देखिए जिस विजन के साथ मोदी साहब आए थे, वो इकोनॉमिक विजन, वो तो अभी तक हमें शुरू होते हुए नजर नहीं आया, और वो ये पाकिस्तान के साथ ये जो अपना ये सिक्योरिटी के मामलात जो ठीक नहीं हुए बल्कि खराब हुए हैं, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात खराब हुए, अफगानिस्तान में भी मामलात उस हवाले से इंडिया का जो है वो मामला ठीक नहीं गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब फिर ये इसका फायदा तो कोई नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा, क्योंकि अगर इस रीजन के अंदर वो पीस का एनवायरनमेंट नहीं होगा और इंडिया इन स्टेट ऑफ वॉर अगर अपने आप को रखेगा पाकिस्तान के साथ, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो भी ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है, तो फिर वो जो आनी है अपना एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड और एक मिरेकल आना है, फिर वो तो फिर वो ख्वाब तो पूरा नहीं हो सकेगा। और देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो खुद जब अफगान प्रेसिडेंट गनी साहब गए थे आज से चंद हफ्ते पहले इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा था, ये उनके वर्ड्स हैं कि हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब उनका ये था कि जो पाकिस्तान ने जो रास्ता दिया अफगानिस्तान को, जो राहदारी दी है अप टिल वागा, तो ये उनका पुराना ख्वाब है कि किसी तरह हमें इंडिया को वागा और अफगानिस्तान और फिर आगे सेंट्रल एशिया तक राहदारी मिले, ट्रेड कॉरिडोर मिले, ताकि वो सेंट्रल एशिया तक वो अपने आप को ओपन अप कर दें। हाँ, लेकिन उनकी जो हरकत है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ ये हालात इस तरह टेंस रखेंगे और तो वो कैसे स्टेट ऑफ वॉर में रहेंगे, अफगानिस्तान के हालात को वो ठीक नहीं होने देंगे, तो आप मुझे बताएं कि कैसे ये कभी और पाकिस्तान के साथ आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसेस को आगे नहीं चलाएंगे, पीस प्रोसेस को, तो कैसे उनको ये रीजनल कनेक्टिविटी और ये एडवांटेजेस उनको मिलेंगे। और दूसरा बड़ा उनको जो नुकसान अब ये नजर आ रहा है कि जनाब अफगानिस्तान में अगर आप खेल खेलेंगे और इनसिक्योरिटी कायम रखेंगे, पीस प्रोसेस को नहीं चलने देंगे वहां पे अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट का,
तो अफगानिस्तान में गैर मुस्तहकम होगा तो तुर्कमानिस्तान की गैस पाइपलाइन कैसे आएगी वाया अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान टू इंडिया। तो इंडिया तो इस वक्त मैं कहता हूँ लूज लूज सिचुएशन में, विन विन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये लोगों को बड़ा अब महसूस हो रहा है इंडिया में कि हमें तो ये सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ये मोदी साहब की पॉलिसी विज़-वी पाकिस्तान। जी जो बिगड़ी साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि यकीनन जो ट्रांजिट ट्रेड की बातचीत चल रही है, और जब आपने कहा कि जब मोदी साहब तशरीफ ले गए चाइना में, और चाइना में उन्होंने प्रैक्टिकली ये बात की, हमारे 48 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट उनको नहीं हजम हो रही, बड़ी प्रॉब्लम हुई उनको। और वो आज भी मैं आपको बताऊं कि उसमें सारे रोडे अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें देखिए बात यह है कि हमें, पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को नहीं कहा, वो यूएई गए हैं, सुना है वहाँ पे बड़ा उन्होंने यूएई के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा उनको कहा जी कि वी विल हैव वी विल इन्वेस्ट इन अ बिग वे। उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान एक फंड रेजिंग की बात हुई है, और एक बड़े अमाउंट है, $60 बिलियन से भी ज्यादा है। $60 बिलियन मीन समथिंग अगर आप उस हिसाब से देखें दोनों मुल्कों के कोऑपरेशन। और फिर जो मोदी साहब के खिताब में जो चीजें चंद एक और कही गई हैं कि हमारे दरमियान तारीखी तौर पे ताल्लुकात रहे हैं। ये और बात है कि कुछ अरसे से शायद जो सफारती या पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं उसमें गर्मजोशी नहीं आई है। और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि तकरीबन 34 साल के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने यूएई का विजिट किया है, लेकिन जो विजिट किया है इसमें काफ़ी हद तक उनको पजीराई मिली है। अब गुजारिश ये है कि इसमें हमारी डिप्लोमेसी कहाँ थी? ये वो जो एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी उनके, ये वो सारी चीजें अभी तक चल तो नहीं रही? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल चल रही है। उन्होंने दिल में वो बात रखी हुई है और उसमें वो स्पेस मिला उनको, हिंदुस्तान को स्पेस मिला है। नहीं, हम यूएई के लोगों की बात कर रहे हैं। मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ ना कि यूएई के लोग जो ओवरऑल अगर अरब दुनिया है और खास करके जीसीसी के जो कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी अहमियत थी। पाकिस्तान को वो अपना गारंटर भी मानते थे, लेकिन पाकिस्तान को साथ साथ ये था कि पाकिस्तानियों की बड़ी एक्सेस थी वहाँ पे। अब जब ये यमन के मामले पे थोड़े डिफरेंसेस पैदा हुए जो शायद पॉलिटिकल हैंडलिंग में प्रॉब्लम था, मैं आपको हैंडलिंग में कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई, अदरवाइज कोई पाकिस्तानी बिल्कुल अरब को चाहते हैं और अरबियों को लुक आफ्टर भी करना चाहते हैं, बट यकीनन ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए बगैर हमें दोनों में बैलेंस भी रखना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि जो यूए के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की उस वक्त की स्टेटमेंट थी, जिसको काफ़ी लोगों ने कहा कि इमेच्योर सी स्टेटमेंट भी है, लेकिन गुजारिश ये है उसमें कि हिंदुस्तान को थोड़ी सी स्पेस मिली और वो स्पेस उन्होंने इस मोदी के विजिट में एक्सप्लॉइट की। उस एक्सप्लॉइट करने का नतीजा ये था कि उन्होंने चंद एक जो बातचीत की पाकिस्तान के खिलाफ उस जमीन को इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान के लिए दोस्ती की जमीन है। यूएई के लोग उनको मना नहीं कर सकते थे कि यू कैन नॉट से दिस? बात ये है कि मना तो कि आप एक इस्लामिक मुल्क के बारे में यहाँ पे इस तरह की बात नहीं कर सकते, जो एड्रेस कर रहे थे ना, जहाँ पे काफी सेंसिटिव है, आप लोगों की जंगें हुई हैं, ये तो उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम में बड़े लोगों से एड्रेस किया है। तो एड्रेस तो मोदी साहब ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया जैसे वो गुजरात में एड्रेस किया करते थे। तो इसी तरह का एड्रेस था वो, और बातचीट भी उन्होंने ऐसी की कि जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, वहाँ भी उन्होंने इसी तरह की बातचीत की। लोग तो कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन एटलीस्ट यूए की हुकूमत को शायद इस मामले में केयरफुल होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और यूए, ये पाकिस्तान और बाकी अरब दुनिया के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो डैमेज हुआ, मैं समझता हूँ उस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि हमारी दोबारा जो सफारती कोशिशें हैं उनको मेरा ख्याल है अभी बड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल हमारे सफारत खाने तो हर जगह मौजूद है, हमारे सफरा हर जगह मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातचीत की गई है, पाकिस्तान के एटलीस्ट मफाद में नहीं की गई है, तो वो चीज़ें हाईलाइट की जाएँ, और उन मुल्कों से जिनमें कभी अगर कोई गलतफहमी फैल भी गई है तो उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के बारे में अरब दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की फ़ौज के जो हाथ हैं वो तकरीबन 1,13,000 कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। ये तो कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहाँ आज भी जबरो इस्तिबदाद चल रहा है, जुल्म सितम चल रहा है, आज भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन बाकी हिंदुस्तान में भी जो मुसलमानों की हालत है वो कोई अच्छी हालत नहीं है। बिल्कुल ऐसा गुजरात सामने है, गुजरात की तो ये खुद चूंकि चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल इनके हाथों पे भी तो उनका खून है, गुजरात के मासूम लोगों का। बाकी अभी अगर यूपी में एक पिछले अरसे में एक स्टेट आई थी कि यूपी में जो बीजेपी वाले लोग हैं वो एक मूव चला रहे हैं कि मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को वापस हिंदुइता की तरफ ला रहे हैं कि कम बैक अपने पुराने रिलीजन की तरफ आए। इट इज़ ऑलमोस्ट अमाउंट टू कमिंग बैक टू योर होम, और अपने मज़हब की तरफ आए। ये वो चीज़ें हैं सारी जो मोदी सरकार तो कर रही है।
میں کچھ جنگ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ڈپلومیٹکلی ان ساری چیزوں پہ توجہ دینی ہے اور ہندوستان کے یہ جو عزائم ہیں ان کو دنیا پہ ایکسپوز کرنا ہے. بھائی صاحب آج توپ کی یا بندوق کی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے اسکرمشز ہو رہے ہیں، بارڈر پہ فائرنگ تو ضرور ہو رہی ہے وہ، لیکن بارڈرز ڈیفائنڈ ہے، بارڈرز کو چینج نہیں کر سکتے. خاص کر کے میں انٹرنیشنل بارڈر کی بات کرتا ہوں، لیکن لائن آف کنٹرول کو تو ہم اس حساب سے نہیں مانتے. یہ ایک سیز فائر لائن ہے، اس کا فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے یو این کے ریزولوشن کے مطابق. لیکن جہاں تک تعلق ہے ڈپلومیسی کا، ہمارا سب سے اسٹرانگ ہتھیار اس وقت جو ہونا چاہیے وہ ڈپلومیسی ہے. اگر ہم ڈپلومیسی میں اسٹرانگ ہوں گے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ پاکستان، ہندوستان کے تمام عزائم، ہندوستان کے جتنے بھی ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہیں، پھر سیز فائر لائن وائیولیشنز ہیں، پھر واٹر ٹیررزم جو ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جب دنیا کے سامنے رکھی جائیں تو میرا خیال ہے ہندوستان کی سیکولرزم، ہندوستان کی ڈیموکریسی اور ہندوستان کی یہ کرول قسم کی جو لیڈرشپ آج، یہ سارے ایکسپوز ہو جائیں گے. ان کی جو ڈمی کریسی ہے جی بالکل وہ ڈمی ہے بیسیکلی. تو وہ لوگوں کے حقوق جس طرح سے وہاں پہ پامال کر رہے ہیں. ابھی آپ جس کا ذکر بھی کرتے تھے گجرات میں جو کچھ انہوں نے کیا، عیسائیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہے وہ ایک عرصے سے ہی اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اوپر اپنی ہیجمنی جو ہے اس کو قائم کرے، لیکن اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور فرسٹریٹ بھی ہو چکا ہے خیر کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی ایک آرگنائز دنیا کی سب سے بڑی افواج ہے. یہاں پہ ٹیررزم کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے. ہمارے جو ٹیررزم کے حوالے سے جو ایشوز تھے کافی حد تک وہ ریزالو ہو چکے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ کشمیر میں ناکام ہو چکا ہے. کشمیری عوام اب بھی اس سے آزادی چاہتی ہے، اور یہ جو فرسٹریشن اس کو یہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور جو ہمارا گوادر پورٹ بن رہا ہے، جو جس قسم کے پلانز ہیں فیوچر کے پاکستان کے، یقینی طور پہ انڈینز جو ہیں دے نروس. اور اس نروس کی سچویشن میں وہ جو فرسٹریشن ہے وہ پھر وہ ایل او سی کو گرم کرنے پہ کبھی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے فاروق امید صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے افواج پاکستان کا، کہ ہم نے کراچی کو صاف کرنا ہے، بلوچستان میں وہاں پہ جو کرمنلز ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، فاٹا میں جو کامیاب آپریشن ہوا ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ ابھی وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور یقینی طور پہ ہماری ان ڈیپتھ جو ایک پالیسی ہے سلامتی کی وہ اس کو فالو کرے گی ہماری افواج جو ہیں. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا مطلب پاکستان جو ہے وہ گائے بگائے، حال ہی میں ملیہ لودھی صاحبہ نے چند ہفتے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی. پاکستان بات تو کرتا رہتا ہے، لیکن اگر بین الاقوامی برادری جو ہے ان کی آنکھیں اگر بند ہیں، کان ان کے بند ہیں، اگر ان کو اگر سارا کچھ دکھتے ہوئے بھی نہیں دکھتا تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں وہی صاحب، ابھی 2 مرتبہ یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز جو ہیں ان کو لایا گیا تھا ورکنگ باؤنڈری پہ اور لائن آف کنٹرول پہ. تو ویسے وہ ہمارے یہ یو این آبزرور ڈپلوائڈ ہے آن دی پاکستان سائڈ. انہوں نے تمام ڈیمیج اسیسمنٹ کی ہے، کیسے لوگ مارے گئے ہیں، کیسے جانی نقصان ہوا ہے، خاص کر شہریوں کا، جو یہ تمام چیزیں انہوں نے کی ہیں. اور ظاہری بات ہے رپورٹس بھی بھیجی ہیں. تو آج یو این سیکرٹری جنرل کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان انڈیا کو ڈائلاگ کے ذریعے حالات کو جو ہے وہ نارملائز کرنا چاہیے. اب پریزیڈنٹ اپنا یو ایس گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین انہوں نے بھی کل کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے تو امریکہ کا انڈیا اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ آپس میں بائیلیٹرل طریقے سے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کریں اور یہ لائن آف کنٹرول والے پہ جو ٹینشن ہے اس کو ختم کریں. تو یہ تو اس سے زیادہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا جی. اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں تو اپنا اتنا خلف و شار ہے، سعودی عربیہ میں یو ای کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے جو مودی صاحب. تو ہم یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ مڈل ایسٹ میں گلف کنٹریز میں مسلمان ممالک کو ہمارے ساتھ، شاید ٹرکی جو ہے وہ ہماری ساتھ کھڑا ہو جائے کسی ایسے فیوچر کانفلکٹ میں اگر انڈیا کے ساتھ حالات اور خراب ہوتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہم ایک تھوڑا سا پوزیشن آف ویکنس سے سرتاج جی سب جا رہے ہیں. میں تو اصولاً سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا نے پچھلے سال 27 اگست کو صرف اس لیے فورن سیکرٹری لیول کی جو میٹنگ تھی جو ہماری ہونی تھی اس کو کال آف کیا یونیلیٹرلی کہ ہمارے ہائی کمشنر نے وہ حریت لیڈروں سے کیوں ملے، حالانکہ وہ بھائیوں سے ملتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا اس پہ. جی
तो जी एग्जैक्टली तो मैं तो ये समझता हूँ अगर उन्होंने उसकी वजह से कॉल ऑफ किया फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक, तो ये इतनी हमें चाहिए था, हम कहते कि ठीक है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आपके मिलेंगे, लेकिन पहले आप लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे हालात को पुरअमन करें, एक कॉन्फिडेंस सीबीएम आना चाहिए आपकी तरफ से, आप हालात को एटमॉस्फेयर को ठीक करें, एनवायरनमेंट को ठीक करें, कंड्यूसिव करें फॉर टॉक्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब देखें ना, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इधर स्टेट ऑफ वॉर में हम हैं तकरीबन, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाएंगे, और अब इस तरह कैसे उनको, मुझे तो नहीं लगता कि वो उनको कन्विंस कर सकेंगे कि जनाब ये आप वायलेशन खत्म करें, आप ये चीजें आप फॉरेन सेक्रेटरी लेवल। लेकिन आपको फारूक साहब कैसे आप ये गैस कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि वो उनको कन्विंस कर पाएंगे? हो सकता है वो अपना केस बेहतर तरीके से लड़े। देखें अपना वहीद साहब, मैं वो पहले भी शुरू में बात मुकम्मल नहीं कर सका था जब आपने ये सवाल किया सरताज अजीज साहब। देखिए पहली बात ये है कि सरताज अजीज साहब वो एग्रेसिव माइंडसेट वाले आदमी नहीं है। सरताज अजीज साहब का आपको पता एज का भी तकाजा है, एक वक्त होता है, हम सब के साथ ये होगा, किसी के साथ पहले किसी के साथ बाद में। मैं तो समझता हूँ वो फिर भी हमसे बहुत, वो अपनी उम्र के हवाले से वो यकीनन एक अच्छी अपना मेंटल और फिजिकल कंडीशन में है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनमें अब वो काबिलियत रही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके इतने संगीन मसाइल जो हैं, और वो भी इंडिया के साथ, और वो भी उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अपना जो एक्स रॉ चीफ हैं अजीत डोवल, जिनकी वीडियोस आप सब सुन चुके हैं, तो वो जाके उनके साथ को पाकिस्तान के फेवर में कोई ऐसी बातचीत को ब्रेक थ्रू करेंगे कि पता लगे कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल और इतने वायलेशन भी खत्म हो गई, और जनाब वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स पे भी इंडिया एग्री कर गया। मेरा नहीं ख्याल है ये, मैं तो समझता हूँ, फिर कहता हूँ कि असूलन हमें पोस्टपोन करना चाहिए था कि जी आप तक जब तक हालात कंड्यूसिव नहीं होंगे टू टॉक्स एट द नेशनल सिक्योरिटी लेवल जो है ये इनको होने का फायदा कोई नहीं है, हमें करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब करने के लिए। अब मैं फिर यहाँ ये बात करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम जो है वो तवक्को करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेशक वो एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, उनका अपने एक सॉफ्ट मिजाज है, लेकिन खुदारा जब आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं टेक्निकली, क्योंकि फुल टाइम और तो फॉरेन मिनिस्टर है कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास ही पोर्टफोलियो है, तो भाई जब आप यूनाइटेड नेशन असेंबली में जाएंगे तो खुदारा आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि जिससे वर्ल्ड कॉन्शियस को, यूनाइटेड नेशंस को, और ये जो बड़े ममालिक, लेकिन लास्ट टाइम जो स्पीच ब्रिगेडियर साहब उन्होंने की थी, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड स्पीच, जिसमें कैटेगोरिकली कश्मीर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बताया था पाकिस्तान के मौके वायलेशंस थी। मोदी साहब नए आए थे, एक बड़ा फिजा में था, एक होप की फिजा थी कि भाई मामलात अच्छे चलेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब पिछले 8 महीने में 10 महीने में जो हालात ने पलटा खाया है, तो अब जब नवाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब करेंगे तो ही हैज टू बी एग्रेसिव। अगर वो वहां पे सॉफ्ट अप्रोच के साथ, एक बहुत नरमी के साथ अगर बात करेंगे, और कश्मीर का, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और ये तमाम लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री वाले हालात अगर वो सही तरीके से फोर्सफुली प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम बहुत मायूस होंगे। सही है। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? अफगानिस्तान ने 16 और 17 को जो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने कुछ हमारे सोल्जर्स से उनको शहीद किया, तो ये क्या मतलब अफगानिस्तान, वो अशरफ गनी साहब तो बड़ा मतलब बेहतरीन किस्म का उनके साथ इक्वेशन हमारा चल रहा था, उनके आर्मी चीफ यहाँ पे आए, काकुल गए, अरेस्ट किया, मतलब क्या ये हुआ? मतलब इंडिया जो है वहां पे भी, डू यू थिंक कि उन्होंने फिर से पेनिट्रेट कर लिया? भाई साहब ये वैसे सवाल कर रहे हैं आप? जी आपसे। जी मैं समझता हूँ कि काफी हद तक इंडियन जो देखे ना, उनका इन्फ्लुएंस खत्म तो नहीं हुआ था ना, चाहे बेशक हम कहते हैं कि उनके अफगान इंटेलिजेंस के जो डिप्टी हैं, हेड ऑफ द अफगान इंटेलिजेंस, उन्होंने एमओयू साइन किया, जो अखबारात में ये रिपोर्ट आई हमारे ISI के साथ, और अफगान इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं थी, उसकी टॉप लीडरशिप, बिकॉज दे वर डायरेक्टली अंडर अब्दुल्ला जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखें बात यह है कि अफगान इंटेलिजेंस और रॉ का एक बड़ा हिस्टोरिकल उनका लिंकेज और नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क ने तबाही मचाई है अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान में पिछले 10 साल में, और ये सब कुछ अमेरिकन और CIA उनकी आंखों के, दे वर हैपनिंग राइट अंडर द नोज।
तो मैं तो समझता हूँ कि वो लोग भी पार्टी थे, ये तमाम ये जो खेल खेला गया पिछले 10 साल में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये जो इंडियन इन्फ्लुएंस जो लोग कहते हैं कि जी वो कम हो गया, वो कम बिल्कुल नहीं हुआ। दे वर वेरी मच स्ट्रॉन्ग ओवर देयर, और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट किया। अफगान तालिबान में उन्होंने दरारें डाली। अफगान तालिबान में काफी लोग डिफेक्ट करके दाइश में आ गए हैं। तहरीक तालिबान के कमांडर कई दाइश में आ गए हैं। दाइश 16 प्रोविंसेस में उसका सिग्नेचर बना है रॉ की सपोर्ट के साथ अफगान। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फॉरेन फाइटर्स हैं उज्बेकिस्तान तो जो आके वहां बैठ, वो भी बड़ी तादाद में दाइश में गए हैं। अब आप देखेंगे कि रॉ की सपोर्ट के साथ अब एक नया फिनोमेना पाकिस्तान रशियन बॉर्डर पे क्रिएट हो रहा है, और वो है दाइश का। अब वो दाइश के थ्रू अब आप देखें ना कहीं जो पाकिस्तान में हमले 1-2-3 हुए हैं, तो ये सिग्नेचर वो दाइश का आया है कि जी ताने बाने दाइश के साथ मिलते थे। बेशक वो पाकिस्तानी लोग थे जिनकी अब दाइश के साथ एफिलिएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर वेरी एक्टिव इन अफगानिस्तान। वो वहां पे अमन नहीं होने देंगे, और उन्होंने देखे कामयाब हो गए कि अब अपना अशरफ गनी साहब की तरफ से एक वक्त में क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट आती थी पाकिस्तान के हवाले से, अब वही अशरफ गनी है, कितनी नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है। तो मैं समझता हूँ इट इज नॉट ओनली अ कॉल ऑफ कंसर्न फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान बट आल्सो फॉर द मिलिट्री लीडरशिप। सही है। जनरल राहिल शरीफ साहब ने भी बड़ी मेहनत की थी, वो भी 2-3 दफा गए हैं, अब अशरफ गनी साहब को मिले। DJI भी 2-3 मरतबा अफगानिस्तान गए हैं। तो ये अभी लग रहा है कि जिस तरह कि somehow the other जो हमारे हाथ में इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव एक किस्म का हमसे वो निकलता जा रहा है दोबारा हाथ से। डॉक्टर साहब, do you see कि the initiative has been changed, या ये एक वक्ती तौर पे है, इक्वेशन अभी तक कायम है अफगानिस्तान के साथ हमारी? देखें भाई साहब, गुजारिश इसमें यह है कि इनिशिएटिव को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे हाथ से सरक गया। इनिशिएटिव तो है, और एक तरह से अगर आप देखें कि जब ये कुछ बॉर्डर की वायोलेशंस हुई, कुछ उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, उसके बाद उनके लोग आए, उन्होंने बातचीत भी की है, और शायद उस बातचीत में उनको क्लियर हो गया कि जो उनका रवैया, उन्होंने जब रवैया चेंज किया है तो ये पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ लेवल पे उनको इस तरह की फीलिंग दे दी गई है, और मेरे ख्याल जाके वो दोबारा इस चीज़ पे रिकनसाइल भी करेंगे। अफगानिस्तान की हद तक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि अफगानिस्तान या अफगानिस्तान वालों को बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में ना तो अमन आ सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को लॉजिस्टिकली बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और फिर उनके एक 1.6 मिलियन तो ऑफिशियली, लेकिन 2.6 मिलियन एक्चुअली अनऑफिशियली अफगान माजरीन यहाँ मौजूद हैं जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है अपने रिसोर्सेज से। अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तानी उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में अगर विजडम है, उनकी लीडरशिप में विजडम है, तो पाकिस्तान के साथ बिगाड़ सकते हैं। फिर पाकिस्तानी हमेशा चाहते हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अवाम कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रख दें। अब बात हुई थी वहाँ पे कि क्या हमें हिंदुस्तान जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। देखिए भाई साहब, बात यह है कि वी मस्ट कीप टॉकिंग। अब बातचीत होगी जब हमारे मशीर वहाँ जाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहाँ जाएंगे। So you are for the talks? I am for the talk, लेकिन टॉक्स क्या हूँ? उनको एक क्लियर पॉलिसी बता दी जाए कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब ये बताएंगे तो मेरा ख्याल आगे चलेगा, और वे फॉरवर्ड भी यही है कि हमें ऑफेंसिवली आगे चलना है और क्लियरली बताना है कि ये हमारे रेड लाइन्स है, अगर आपने इनको क्रॉस किया तो फिर मेरा ख्याल है आपके और हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। और हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुवियता, मैं आपको बताऊं, हिंदुइज्म वो सिर्फ सख्ती की जुबान समझते हैं, नरम तरीके से बात करेंगे वो कभी बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।